ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘਤ। ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਧਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ, ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਚੌਂਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ, ਬਹਿ ਚੌਂਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆ, ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ, ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਜੋ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ 4 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਚੱਜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਨੇਊ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ, ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਪਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਰਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਖੱਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਜੰਗ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ? ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ
ਵਿਪਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। तो सतगुरु महाराज ने बहुत सोहने तरीके नाल इस कुंडी नूं खोले। तो आप जी नूं पता होवे, जिहड़े आप थोड़ी बहुती स्टडी करते जे, जिहड़े जनेऊ ने वो भी 3 श्रेणियां पा सकदियां ने, ब्राह्मण, खतरी ते वैस। ते कमाल दी गल वेखो, तिन्हां दे जनेऊ भी वखरे वखरे। ब्राह्मण दा जनेऊ कपाह दा है, जिहड़ा खतरी है उहदा जनेऊ सण दा है, जिहड़ा वैस है उहदा जनेऊ मीढे दी भाव भेडू की उन का है। हुण जे इंसान इक्को है, उन्होंने जनेऊ वखरे वखरे। अपने आप वो कहण का मुताबिक सी कि यह जनेऊ धारण करने नाल मनुख धर्मी बनता है, पर तिन्हां दे जनेऊ अलग अलग। विपर का जनेऊ कपाह का, खतरी का जनेऊ सण का, जिहड़ा वैस सी उहदा जनेऊ मीढे की भाव भेडू की उन का। हुण तुसीं कहोगे शूद्र का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि शूद्र वास्ते कोई धागा बनिया ही नहीं। उन्होंने इन्हां मुताबिक उन्होंने किसी धर्म में शामिल होने की जरूरत नहीं, वो तो रहेगा अधर्मी सारी जिंदगी। ताई तो भगत कबीर जी वर्गे योद्धिया ने अखां च अखां पा के सवाल किया कि जे तो जनेऊ पाउण नाल ही तू धर्मी बनता है, फिर तो साडे घर ढेर लगे पे ने धागियां दे, क्योंकि हम कर सूतने ने ताना कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोबिंद हृदय हमारे। तू तो जुबान नाल गायत्री मंत्र पढ़दा, साडे ते अंदर गोबिंद वो धरती का मालक साडे अंदर समाया होया है। ते कमाल की गल वेखो, तिन्हां नूं जनेऊ जदों पाए जाते हैं, उन्हां दी जिहड़ा उम्र पीरियड है वो भी वखरा वखरा। विपर जन्म तो लैके 8वें साल में उन्होंने जनेऊ पाया जाएगा। जदों 8 सालों का होएगा उदों ब्राह्मण नूं जनेऊ की रस्म जिहड़ी अदा की जाएगी। जिहड़ा खतरी है उन्होंने 11 साल की उम्र च, जन्म तो लैके 11 साल। जिहड़ा वैस है उन्होंने 12 साल, उन्होंने 12वें साल में जनेऊ की रस्म जिहड़ी अदा की जाएगी। तो तिन्हां जनेऊ पाउण दीआं रुत भी अलग अलग है। जिहड़ा ब्राह्मण है उन्होंने जनेऊ पाउण दी रुत है बसंत। जिहड़ा खतरी है उहदे वास्ते गर्मी की रुत में जनेऊ पाया जाएगा। तो शूद्र जिहड़ा वैस है उहदे वास्ते सर्दी की रुत है। हुण तुसीं वेखो, रुत भी अलग अलग, टाइम पीरियड भी अलग अलग, जनेऊ दे उन्हां दी बनतर भी अलग अलग। इदां वर्ण वंड उन्हें की। विपर बड़ा चलाक सी, आप कपाह दा जनेऊ लै लिया, आप रुत भी वो लई बसंत, मिठी मिठी रुत, बड़ा तेज सी। इन्हें त्यौहार भी इदां ही वंडे सी। आप विसाखी लै ली भी 4 मन दाने होणगे, ते जे जजमान दे घर 4 मन दाने होणगे तो मेरे घर भी आउणगे। खतरी नूं दशहरा देता, वैस व्यापारी से उन्होंने दिवाली देती, शूद्र दे हिस्से घटा मिट्टी पाउण वाली होली रहेगी। तो खैर एक तो वखरे दिन आप इस प्रकरण ते इस विषय ते विचारां करांगे। अज तां सिर्फ आप इन्नी गल करनी है भी फर्क वेखो। हुण जदों गुरु नानक साहिब महाराज जी दे ये जनेऊ वाली रस्म अदा होनी है, तो गुरु नानक साहिब महाराज का पहला सवाल है, कहते भी ये धागा पाउण नाल हुंदा की है। कहते ये पाउण नाल मनुख धर्मी बनता है। ध्यान नाल सुणिओ, महाराज कहते जे तो ये धागा पाउण नाल धर्मी बनता है मनुख, फिर मैं अपनी मां का दुध पीता है, मैनू अपनी माता के तन ते धागा नहीं दसिया। क्योंकि जिहड़ा जनेऊ है, तुसीं सरी साहब जदों आपां सज्जे मोढे तो खब्बे मोढे नूं पाउने आ, जिहड़ा जनेऊ है वो खब्बे मोढे तो सज्जी वक्खी वाले बन्ने आउंदा है। वो सिर्फ एक दिन सज्जे मोढे तो खब्बे मोढे पाउंदे जदों अपने पिता के कर्म करते, जदों उन्हां दा कोई पिता चढ़ाई करता है, उदों रस्मां अदा करन वक्त उदों सज्जे मोढे तो खब्बे मोढे पाउंदे ने। वास्तव में खब्बे मोढे तो सज्जे मोढे सज्जी वक्खी वाले बन्ने जांदा है जनेऊ, उहदी दिशा उल्टी है। ये विपर दे अपने अपने टिकवांज बनाए हुए सी। महाराज कहते जे ते धागा पाउण नाल मनुख धर्मी बनता है, तो फिर ऐ कर, मेरी मां के गल विच धागा पा, मैं अपनी मां का दुध पीता, मैनू उहदे तन ते धागा दिसिया नहीं। मेरी मां दे कोल, क्योंकि गुरु नानक साहिब विपर के मुताबिक उन्होंने 11 साल की आरजू में यह धागा पैना है। ब्राह्मण की इस शास्त्रां दे धर्म ग्रंथां के मुताबिक 11 साल की आरजू के उन्होंने यह धागा जिहड़ा पाया जाना है। हुण महाराज अगे सवाल करते, कहते भी मैं अपनी मां के
काले धागा नहीं वेख्या। मेरी भैन मेरे तो 5 साल वड्डी है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ धागा है नहीं, पहला मेरी भैन ते माता नूं पा। मेरी भैन भी वड्डी है, माँ का मैं दुध पीता, ਉਹਦੇ ਕੋਲ धागा है नहीं। विपर चुप है। हुण किदां दसे भी औरत वास्ते धागा बनया ही नहीं। वो कहता औरत वास्ते धागा है नहीं है। मारा कहते हद हो गई। हुणे तूं कहा भी धागा पाउण नाल बंदा धर्मी बनदा है, जिहड़ा धागा नहीं पाएगा कुदरती गल है, वह धर्मी रहेगा। इंसाफ तो यही है ना भी जिन्हें धागा पाया वो धर्मी, जिन्हें नहीं पाया वो अधर्मी। फिर इसका अर्थ होया भी मैं धागा पाउण नाल धर्म च शामिल हो गया, मेरी माँ सारी जिंदगी अधर्मी रहेगी। जे तेरे कहण मुताबक धागे नाल ही बंदा धर्मी बनता है। मैं अपनी माँ की कुख तो जन्म लिया, मैं ये धागा पाउण नाल धर्म में शामिल हो जाना। मेरी माँ जिहड़ी है वो धागा ना पाउण करके सारी जिंदगी बेचारी अधर्मी रहेगी दुनिया ते, उन्होंने धर्म नसीब ही नहीं होना। हे विपर तेरे कहण मुताबक एक गरीब परिवार का बच्चा फड़ के हुण इहदा अर्थ महाराज नूं पता है, एक गरीब परिवार का बच्चा फड़ के लै आंदा, कहंदे इहनूं पावे, ये भी तो मेरी उम्र का ही है, ये गल च है नहीं। कहते शूदर वास्ते भी है नहीं। महाराज कहते हद हो गई, गरीब परिवारों वास्ते भी है नहीं, मेरी माँ तो मेरी भैन वास्ते भी है नहीं। तू कहना है धागा पाउण नाल बंदा धर्मी बनता है। कहते फिर इंज कर, मैं तेरे कोलों इहो जिहा धागा नहीं पाउणा जिहड़े धागे पाउण नाल मैं अपनी माँ के सामने उच्चा बन जावां ते मेरी माँ मेरे सामने नीवीं रहे। मैं वो धागा नहीं पाउणा जिहड़ा धागा पाउण नाल मैं अपनी भैन तो 5 साल छोटा होने के बावजूद तेरे इस धागे करके उच्चा बन जावां ते मेरी भैन मेरे तो नीवीं रहे। भागां वालिओ, मेरी भैनों, गुरु नानक साहब महाराज जी की इस विचारधारा नूं समझण वाली सत्कारयोग बेबे नानकी सिर झुकदा है। एक बने दूजे मजहबां दा जिहड़ा ज्ञान है औरत वास्ते नहीं। मैं कल भी जदों विचार करदे हैं एक संगतां सामने विचार रखे सी कि साडे समाज का दुखांत वेखो किड्डा वड्डा है कि जिहड़ी औरत की कुख तो राजे महाराजे जन्म लैंदे ने, उहनूं किते ना किते इत्थे महात्मा बुद्ध वर्गे भी जिहड़े बहुत लंबी छाल मारदे सी, वो भी अपने भिक्षण नूं एक गल कहिंदे सी, जदों भिखिया मंगण जाना है तो 5 फुट तो वध तुसीं अपनी निगाह तां नहीं चकनी। किसी औरत के चेहरे ते तुहाडा ध्यान पै गया, तुहाडा ईमान डुल सकदा है, तुसीं अपने ईमान तो डोल सकदे जी। ये अपने भिक्षुआं नूं कहंदा सी। वो तो बाद विच थाईलैंड दे विच इसे करके वो गृहस्थों किते ना किते भगौड़े सी। तो थाईलैंड विच बाद विच भिक्षुआं नूं सरकारां ने सकंजा कसिया ते उन्हां नूं विआह कराउणे पए। उन्हां नूं प्रॉब्लम सी, जिवें औरत नूं जोगी लोग बघियाड़न कहिंदे सन, उन्हां दे मुताबक औरत जिहड़ी है ये सच दे रस्ते ते तुरन विच सब तो वड्डी रुकावट है। इत्थे बड़े बड़े धार्मिक आगुआं ने भी औरत नूं माफ़ करना, तुलसी दास वर्गियां ने पशुआं की कतार च लिया के औरत नूं खड़ा कर दिता। उन्हें कहा ढोर होवे, शूद्र होवे, पशु होवे, नारी होवे, ये सब ताड़न के अधिकारी कह दिता उन्हें। फर्क वेखो, जिस वक्त औरत नूं पैर की जुत्ती समझा जा रहा सी, उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज जी की विचारधारा कहती है इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई। वो औरत नूं मंदा कहण वालिओ, इस जगत विच पुरख ही एक है, आपां सारे उहदियां जीव इस्त्रियां हां। आओ भैणे गल मिले। अपने आप को जो बाणी विच जीव इस्त्री के रूप में पेश किया, तन सुहागण जो प्रभु पछाना है, सच नूं कंत किया, तो संसार चाहे नार है चाहे कोई मादा है, उन्होंने इस्त्री के रूप में पेश किया। असी साडे कोल तां एडे कीमती हीरे जवाहरात मोती सन, असी तां दुनिया नूं दसना सी कि इहदे विच एडा वड्डा खजाना, पर असी अजे तक आप ही चंगी तरह नहीं समझ पाए। तुसीं अपनी धी नूं, अपने पुत्र नूं एक बार गुरु नानक साहब जी की इस फिलोसफी बारे जानकारी दे दिओ। एडे उच्चे सुच्चे विचार कित्थे खलोता है साडा समाज। मैनूं अज भी याद है 2002 की गल है, असी कलकत्ते समागम ते जा रहे सी, लुधियाणे विचों असी ट्रेन ते बैठे, जदों असी जा रहे सी शामां दा समां सी, साडे नाल एक रागी जथा सी, असी 4-5 जाने सी, शाम दा टाइम सी, साडे सारे विद्यार्थी रल के असी शाम नूं सोदर दा पाठ कर लगे। साडे लागे 2 बैंक मुलाजम सन, वो आपस में गल्लां कर रहे सन, चलो असी अपना पाठ करते गए। वो जदों असी पाठ कर रहे सी, विचारां कर रहे सी, वो साइड ते बैठे सुनते रहे। वो चंडीगढ़ दे विच किसी बैंक में जॉब करते सन, रहने वाले कलकत्ते दे सन।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਨੇਊ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਾਉਣ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਪਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਸ ਕੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2003 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ? ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਪਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਬਣਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਇਆ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤੋਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਤ ਗੰਢੀ, ਗੰਢਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਤ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬਿਹੰਗਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ, ਸਾਧ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਵਿਆਹ ਜੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਆਮ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਹੰਗਮ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੀ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਗੰਢੀ। ਹੁਣ ਜਤ ਕਿਸੇ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇਂ, ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ। ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਘਰ ਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਬੈਠਾ ਜਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸੱਤ ਵਟ। ਇਹ ਜਨੇਊ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਕਾ, ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆੜਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ,
हे विपर जिहड़ा तू दस रहा ताने पाउणा है, आ फर्क है। जिहड़ा मैं दस रहा ये माने पाउणा है। ये जनेऊ जी का, क्योंकि पुआड़े की जड़ जी है। ये मन लैके जाता है तन नूं गलत जगह ते। मन तन की की हिम्मत है कदम भी पुट सके मन की इजाजत तो बिना। ये जनेऊ जी का, जी का मन का है ही हैगा। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ महाराज ने जनेऊ पाउण तो इनकार किया, पाउण तो इनकार नहीं किया, पवाउण तो इनकार नहीं किया। क्या पा दे, आ हैगा ते पा दे। जिवें कोई मान लो किसी दुकान ते जांदा है, महाराज कहते मैं समान लैन आया पर आ हैगा ते दे। मैं ये थोड़ा कहना तेनों भी मैं समान लैन नहीं आया। हुण मान लो कस्टमर किसी दुकान ते जांदा है, वो कहता मैं वेखो आ आइटमां तुहानूं दस दियां हैगियां दे दो मैनूं। मैं ये थोड़ा कहना मैं तुहाडे कोल लैन नहीं आया, मैं तो लैन आया वां, मैं तो गाहक वां, जे हैगा ते दे दो मैनूं। जो समान है तो इदां महाराज कहते मैं तेरे को आया वां, हैगा तो समान दे। उसदे हत्थ खड़े ने। वो कहता बाबा ये मन वाला जनेऊ मेरे कोल नहीं है। ये जनेऊ जी का हई हैगा तां पांडे घत, हैगा है तां पांडे पा दे, मैं पवाउण नूं तैयार हाँ अपने गल दे विच। हुण किन्ने प्यारे शब्द वरते ने। हुण माफ़ करना, हुण इत्थे जिहड़ा शब्द वरतिया बा कमाल है। गुरुदेव जी कहते हैं ना ये टुट्टा है, किहड़ा दया वाला, संतोख वाला, जत वाला, सत वाला, ना ये टुट्टा है। कह लगे जत गंढी, जत दियां गंढां गंढां ना दित्तियां हुण अंदर जत होवे, सत वट उन्होंने वट ना चाढ़िया होवे। सत मीनिंग करैक्टर, आचरण। अज किरदार नीवा हो गया, अज आचरण नीवा हो गया। अज किरदार इन्हां सच्चों उरै सब को उपर सच आचार। आचार सच तो भी उच्चे है, सच तो भी उच्चा मनुख का आचार है, करैक्टर है, किरदार है, ये वट है। ये जनेऊ जी का, ये जनेऊ जी का है, हई हैगा तां पांडे घत, हे पंडित जी पा दे, ना ये टुट्टा है। अड़ा तू दसना है ये टुट भी जाना है, इनू मैल भी लगनी है। ना ये टुट्टा है, ना ये टुटेगा, ना मल लगे, ना इनू मैल लगनी है, ना ये जले, ना इन्हें अग में सड़ना है, ना ये जले ना जाए, ते ना ये बंदे तो परां होएगा। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। धन ने वो मनुख जिहड़े इस धागे नूं अपने गल पाउंदे ने। किहड़े धागे नूं? दया नूं, संतोख नूं, जत नूं, सत नूं। ये गुण ने। हुण थोड़ा जिहा अपने वाल आ जाइए। जे कल नूं कोई सवाल कर देवे तुहाडे गल पाया श्री साहब तुहाडे नाल जाना है? नहीं जाना। तुहाडे गुट च पाया कड़ा तुहाडे नाल जाना है? नहीं जाना। यानी कि जाण दा भाव जाना तो कोई भी नहीं, इत्थे शरीर नाल नहीं जाना। मरण तो बाद की गल नहीं हो रही कि ये जिहड़ियां चीज़ां नूं इत्थे गुरदेव जी ना ये टुट्टा है, ये धागा टुटेगा नहीं, यानी कि इहदा मतलब जिहड़ा तू पाउणा है टुट जाना है। तो जे अगले सवाल कर देन तुहाडा भी तो श्री साहब टुटना ही है। श्री साहब भी बदलने पैंदे, गातरे बदलने पैंदे ने, केस धोने पैंदे ने, मैल लगदी है, कशहरे नवें लियाउणे पैंदे ने, कड़े नवें लियाउणे पैंदे ने, बदलने पैंदे ने। इहदा मतलब की है? ध्यान ना सुनियो, किते ऐसा तो नहीं ये कल्ले गुण ब्राह्मण नूं ही नहीं कह रहे धारण करने वास्ते। एक गल सिखा तेरे ते भी उन्नी टुकदी है, तैनूं भी वो गुण धारण लई कह रहे ने। अपने अंदर भी तेरे अंदर दया, हुण तूं कहें मैनूं 40 साल हो गए अमर छके नूं, तेरे अंदर दया है? दया कपा अज दया है? श्री साहब उत्तों दी पाई है, एक कुड़म नूं कुड़म वाल वेख के दया आ रही है? ये तरस आ रहा? अपने आप नूं लड़की दे बाप वाली जगह ते खड़ा करके वेख एक बार, वो किदां अपने जिगर दे टोटे नूं तोड़ रहा है। मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा, इन्ना समान दोगे तो फिर लेके जाना। बहुत थावां ते लड़की परिवार वाले लड़के परिवार वाले ते तशद्दद करते, क्योंकि एक थावां ते घटनावां नहीं वापरियां। तरस दया, साड़ी दया तरस तां माफ़ करना कुत्तियां ते रह गई। कई मैं ऐसे बंदे वेखे कुत्तियां नूं ते जफियां पाउंदे, कुत्तियां नाल ते प्यार करदे ने ते इंसानां नाल नफरत करदे आ। कई साध कुत्तियां नाल ते जफियां पाउंदे ने ते इंसानां तो नफरत करते हैं। ये भारत देश है जिथे कुत्ता खूह तो पानी पी जाता सी ते कुत्ते खूह का पानी फिर भी पवित्र सी, पर जे कोई शूद्र दलित खूह के उत्ते चढ़ जाता सी कहते खूह का पानी पिटिया गया। कोई कुत्ता किसी धार्मिक स्थान ते अंदर वड़ जाता सी कोई फर्क नहीं सी पैंदा, पर किसी दलित का हथ लग जाना कहने हुण धार्मिक स्थान अपवित्र हो गए। यानी कि
साड़ी दया कित्थे आण खलोती। गऊआं मगर पेड़ा चक्की फिरदा है, जन्म देने वाली मां नूं धक्के मार के घरों बाहर कढ़ रहा है। कुत्तियां मगर ब्रैड लैके तुरिया फिरदा है, दुध पिआउंदा फिरदा है, गऊआं नूं मुल लैके पट्ठे पाउंदा फिरदा। कई गऊशाला जाणगे पट्ठे पाउण, मैं नहीं कहंदा जाओ, जम जम जाओ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ मां कहंदे 1000 वार जाओ, पर जन्म देने वाली मां नूं कित्थे गई दया। मैं सरी साहब पाया जी, मैं तो खंडे की पौह लई हुई है, माफ़ करना किड्डा चंगा होवे जे ककार पाए तो गुण भी नाल होण। ककार पाए होण, तू सोहणे साबित सूरत होवे, जे तेरे गुट ते कड़ा होवे सोहणे, तू जे तू वाकिया, मैं अगे भी बेनती की सी, खंडे की पौल ताने छकनी है, आ गुणा का जिहड़ा अमृत है ये माने छकना है। जिवें आ जनेऊ की गल है, दया कपा, ये मन का ये चीज़ां मन नूं चाहीदियां ने। इदां ही महाराज कहंदे ने ये धागा जिहड़ा जनेऊ धागा कपाह दा ये ताने पाउणा है, इस इदां ही सरी साहब कड़ा ये ताने पाउणा है। तो मन का अमृत किहड़ा है? दया, सत, संतोख। ये खंडे की पौह लैके सिख ने गुरबाणी का अमृत रोज़ पीना, ताकि मैं ये सत, संतोख, दया, ये आदक दैवी गुण जिहड़े आ इन्हां नूं अपनी जिंदगी चों प्रगट करके इन्हां अनुसार अपनी जिंदगी बसर कर सकां। हजूर कहंदे ने धन सो मानस नानका, वो धन ने मनुख जो गल चले पाए। फिर कहंदे ने चौंकड़ मुल अणाया, 4 कौडियां दा, 4 कौडियां उहदा मुल है। बह चौंके पाया, चौंके दे कोल आण, क्योंकि पूरी मर्यादा निभाई जाती, जो पाया जाता है ना, पूरा घर की तैयारी की जाती है, रिश्तेदार सद्दे जाते हैं, साक संबंधी आउंदे ने, लैण देण हुंदा है, पूरा तैयारी दे नाल। चौंकड़ मुल अणाया, 4 कौडियां उहदी कीमत है, उहनूं खरीद के लिआंदा। बह चौंके पाया, चौंके दे कोल बैठ के इदां पूरी तैयारी दे नाल उहनूं पाया गया। हुण ध्यान नाल सुणिओ, एक असी गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब बारे अक्सर एक बचन पढ़ते हैं, भावें वह गुरबाणी नहीं हैगा, उस ग्रंथ विचों जिहदे नाल साडा लैणा देना ही कोई नहीं। तिलक जंजू राखा प्रभताका, कीनो बड़ो कलू मैं साका, ये आम तुकां पढ़ियां जांदियां ਜਦੋਂ 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहादत का दिन हुंदा है। इदां पेश किया जाता, इदां एक गुरु ने जनेऊ पाया नहीं, दूजे गुरु ने आख्या मैं जनेऊ लैण नहीं देना। वो प्यारिओ, ये शहादतां धागे वास्ते नहीं सी होईयां। एडी वड्डी कुरबानी नूं एक धागे ते लिया के ना खड़ा कर दिओ। जे उस वक्त उच्च जातीय ब्राह्मण मुसलमानां ते अत्याचार करते हुंदे, गुरु साहब तां भी उन्हां दे नाल खड़दे। फिर इस्लाम दे नाल गुरु साहब उत्थे क्यों पेश किया जा रहा जिवें गुरु साहब मुसलमानां दे विरोधी ने ते सिर्फ ब्राह्मणां दे हक विच ने। फिर भाई मरदाना जी नूं कित्थे रखोगे, निहंग खां नूं कित्थे रखोगे, गनी खां नबी खां नूं कित्थे रखोगे? लगदा नहीं सिखो तुहानूं पंप दे दे के हवा छका छका के अगलियां ने अपने काम कढाए ने। कदों सिख जागेगा? चलो लीडरां दी ते मत मारी गई सी, उन्हां नूं ते कुर्सियां प्यारियां सी, थोड़े बहुते साडे बुलारे यूनीवर्सिटियां च पढ़ाउण वाले ओहो ही सचेत रहिंदे, समझ आंदे, दुध दा दुध ते पानी दा पानी करके असीं दस पाउंदे कि असीं किसी एक फिरके दे हक विच नहीं आ। साडे गुरु ने नहीं आख्या इत्थे जुल्म हो रहा। वो प्यारिओ 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ियां लड़ियां, उन्हां विचों 13 जंगां ते पहाड़ी राजिਆਂ नाल लड़नियां पईयां। ते पहाड़ी राजिਆਂ दा प्रेमा परोत पढ़ के वेख लो, हिस्ट्री तुहाडे सामने है। ज्ञानी सोहण सिंह सीतल दीयां किताबां पढ़ो, बाबा प्रेम सिंह होती मरदान दीयां किताबां पढ़ के वेख लो, ऐ तुहानूं समझ आ जाएगी। 13 जंगां पहाड़ी राजिਆਂ नाल। पहला युद्ध भंगाणी दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का किहनां नाल होया सी? उस औरंगजेब की फौज शामिल सी, पहाड़ी राजिਆਂ की। आनंदपुर नूं घेरा पिया रहा, चमकौर साहब दी, सिर्फ चमकौर साहब की गढ़ी वाला उस वक्त औरंगजेब की फौज शामिल हुंदी है। 13 जंगां ते उन्हां नाल ते पेश इदां कीता जा रहा जिवें गुरु साहब सिर्फ मुसलमानां दे उल्ट होण ना। इत्थे गल मानवता दी सी। जुल्म जे उस वक्त ब्राह्मण परिवार उन्हां ते मुसलमानां ते करदे, गुरु साहब ने उत्थे खड़ना सी नाल। गल महाराज कहंदे भाई उन्हां दा धागा है। हुण महाराज जनेऊ नाल सहमत थोड़ा है, गल आज़ादी दी हो रही है। बहुत वारी असीं किसी दियां विचारां नाल सहमत नहीं हुंदे, पर कहने ना भाई धक्का नहीं, ना 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 धक्के ना असीं सहमत नहीं हैगे, असीं नहीं सहमत हैगे उहदियां विचारां नाल। साडे बुलारियां विच भी कई वारी ऐसा हुंदा है, विचारधारक मतभेद हुंदे ने, कहंदे विचारधारक मतभेद ने, पर आ नहीं भी तुसीं उत्ते धक्का करोगे।
नहीं साढ़े विचार उहदे नाल मिलदे, वखरी गल विचारां दी भिन्नता है, वो अगले मनते ने धागा पाउण 100 वार पाउण, पर तुसीं एडी वड्डी शहादत नूं सिर्फ एक धागे ते लिया के ना खड़ा कर दिओ भी सिर्फ एक धागे नूं बचाउण वास्ते एडी वड्डी गुरु साहब ने कुर्बानी कीती है। जिन्हां ने एक बन्ने असीं कहने धागे नूं बचाउण लई कुर्बानी कीती है, जिन्हां दा धागा बचाया ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ किद्दां ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਲੈ के पै रहे ने, किद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ खाण नूं पैंदे ने, किद्दां ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ किद्दां जलील कर रहे हैं। कदों सिख जागेगा जी? सुचेत हो, थोड़ा जिहा समझो नौजवान वीरो, होश के नाल जोश के नाल होश तो काम लो। अज लोड़ है सानू समझण ते विचारन दी, जिस नीति नाल अगला तुरदा है उस नीति नाल असीं दस दईए बाणी दी विचार आ है भाई, गल ते विचार टारगेट करा सी। एक बार जदों तुसीं गुरबाणी पढ़ लोगे तुहानूं समझ आ जाएगी अगले नूं प्रॉब्लम कित्थे सी। जदों भाई कान सिंह नाभा जी वर्गे हम हिंदू नहीं पुस्तक लिखते हैं, उसका मतलब की सी? उत्थे गल सी तुहाडी इस विचार धारणा असीं सहमत नहीं, तुसीं मन्नी जाओ, 100 वार मन्नी जाओ। पर दुख तो उदों हुंदा है जदों साडियां अपणियां जथेबंदियां, अपणियां संप्रदावां, डेरे जिहड़े गुरु नूं लव कुश दी औलाद दसदे ने, किते लिया लिया के विप्रवाद के खारे सागर सुट रहे हैं। उन्हां दीयां किताबां 'च लिखिया, गुरबाणी पाठ दर्पण पढ़ के वेख लो, लिया के उत्थे खड़ा करता, बेदियां दी कोल लिया के उत्थे खड़ा करता। कित्थे लिया के? जिस विप्रवाद चों एक बन्ने भगत कबीर जी ये शब्द वरते ने, उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुला छाड़े दो। बुन बुन आप पहराऊं, जे नहीं आप ते होए गाँव, पंडित मुला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछू ना लिया। किथे लिया खड़ा करता? अज पंडित मुला तो बिना असीं तुरदे नहीं, कर्मकांडी जीवन जीव रहे हैं। सिखो जागो, सुचेत हो, फिर गल समझ लेना असीं किसी जात नस्ल के विरोधी नहीं हाँ, गल विचारधारक है। इदां पेश किया जा रहा, एक ने कहा जिन्हें पाउणा नहीं, दूजे ने कहा मैं लैण नहीं देना, इसदा मतलब गुरु साहब आपस में आपा विरोधी ने। गल उत्थे धागे की है ही नहीं है जिहड़ी लिया के पेश की जा रही है। कश्मीरी ब्राह्मण आउण तो पहला भी गुरु तेग बहादुर साहब नूं 2 वार गिरफ्तार कर चुके हैं, 2 वार। उदों कादी प्रॉब्लम सी? अगलियां नूं वध रही प्रभुता, आम मनुखता के हक में गुरु साहब का खलोना समय दियां सरकारां नूं बर्दाश्त। अज भी तुसीं देखो, जिहड़ा भी बंदा आम वर्ग के जाके बराबर खड़न की कोशिश करता, जिहड़ा लोक भलाई दे काम करता, समाज में एन आम बंदियां दे बराबर खड़दा है, लीडरां नूं पिट सियापा नहीं पैंदा भी अगले कहंदे ने तुहानूं असीं लीडर चुनिया, तुसीं एसी रूमां चों नहीं निकलदे। आ बंदा बिल्कुल ग्राउंड पद्धर ते जाके साडे नाल खलोता होया है, कहंदे इहनूं परां करो, मनफी करो, अपनी टीम में खड़ी कर दिओ विच। अगले इदां सुटदे ने, इदां ठिबियां ला ला के डेगण की कोशिश करते हैं। गुरु साहब वेले भी इंज होया, अज भी होया। सारे लोग सेवा करने वाले सियासत नहीं करते, सियासतां करने वाले उंगलां ते गिणन वाले हुंदे ने, चंगे उहदे विच आपे लपेटे जांदे ने बेचारे, उन्होंने फिर मुड़ के स्पष्टीकरण देने पैंदे ने। तो खैर जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा, इत्थे शब्द वरते चौंकड़ मुल अणाया। हुण इत्थे लिखिआ 4 कौडी चौंकड़ मुल अणाया, 4 कौडियां जिहदी कीमत है, हुण आपे 4 कौडियां जिहदी कीमत होवे, 4 कौडियां दा जिहड़ा धागा वटिया होवे ते गुरु साहब की शहादत एक जनेऊली होवे, इहदा मतलब गुरु साहब की शहादत 4 कौडियां दी है। 2 मिनट सोच के वेखियो, प्रबंधक कमेटियां भी सोचन, प्रचारक बुलारे रागी सब सोच के वेखियो एक बार। गल उत्थे आज़ादी दी सी, आज़ादी दी सी। जिहड़े गनी खां नबी खां होनी बाद च गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे नाल तुरदे, जिन्होंने ये पता हुंदा भी गुरु साहब साडे विरुद्ध ने, वो नाल तुरदे। निहंग खां भाई बचित्र सिंह नूं अपने घर पा के कहंदा है, भाई बचित्र सिंह जख्मी जदों निहंग खां दे घर पहुंचदा है ते भाई बचित्र सिंह जदों पिछों फौज चढ़ के आउंदी है ते निहंग खां एक रूम दे विच ओहदी अपनी कुआरी बेटी ते भाई बचित्र सिंह ओहदी सेवा संभाल च लगी हुई है। वो आण के पुछदे कौन, कहंदा मेरा धी जवाई पए ने जी, मेरा धी जवाई पए ने। किड्डा जिगरा होएगा उस निहंग खां दा, एक धी वाला जिहदी धी अपनी वो बाप ही जानदा है। उन्हें कहा जी मेरा धी जवाई पए ने। अगले चले गए अगे, भाई बचित्र सिंह अगले दिन वो चढ़ाई कर जाते हैं। निहंग खां की उस बेटी ने मुड़ के दोबारा विआह नहीं कराया, कहती पिता जी कल आपे तुसीं कहता सी। वो बचाई भाई बचित्र सिंह की
पत्नी बन के अपना सारा जीवन गुजारिया उस बीबी ने। एडे उच्चे किरदार के मालक होण वो साडे भरा ते असीं ये कहिए सिर्फ इन्हां दे विरुद्ध सी जी, इन्हां दे विरुद्ध सी। मैं एक सवाल होर करना चाहुंदा, जिहड़े असीं कहने असीं समाज विच भरावां तरह रहना चाहुंदे, जिन्हां नूं रखड़ी तिहार ते अपना लगदा है, फिर जे असीं समाज विच सारिआं नाल प्यार इक्को जिहा करदे हां, नमाज भी पढ़ो उन्हां दे नाल जाके, फिर वो भी तो तुहाडे भरा ही ने, उन्हां दे नाल भी बैठ के सांझ करो, दोस्ती करो, हर्ज की है जे ये गल है तो। पर नहीं, किते ना किते साडे दिमाग च अगलियां कीड़ा बिठाया है, किते ना किते अगले सानू वरत रहे ने, असीं वरते जा रहे हैं। अज जिन्ने डेरे ने किन्हां दी पैरवाई कर रहे हैं, किन्हां नाल साडे लछण रलदे ने, पूजा करन दे तरीके, थाल घुमाउणे, आरतियां करनियां, बकरियां दीयां बलियां देनियां, जोतां जगाउणियां, टल्लियां खड़काउणियां, लछण किन्हां नाल रलदे ने? सोच के वेखियो तुसीं। RSS के आगूआं जफियां कौन पाउंदे ने? सोच के वेखियो। खैर, जिहड़ी मैं बेनती करदा, चौंकड़ मुल अणाया 4 कौड़ियां उहदी कीमत, बह चौंके पाया, चौंके विच बैठ के तां पाता ते की कीता, सिक्खा, इहनूं सिक्खा पढ़ना, सिक्खा कंन चढ़ाइया, सिੱਖਿਆ चाढ़ दित्ती कंन विच, जनेऊ पा के की गुर ब्राह्मण थिया, अज तो बाद तेरा गुरु ब्राह्मण हो गया, अज तो बाद तेरा गुरु ब्राह्मण हो गया। कबीर ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुर ना है, अर्ज उर्ज के पचमुआ चारों वेदों माहे। ये भगतां दा गुरु नहीं, उस जिहड़ा भगती नाल प्यार करन वाला है, सच दे रस्ते तुरन वाला, उहदा गुरु नहीं हो सकदा जगत दा गुरु। हुण आपां के चाहुंदे सोच के वेखियो। अर्ज उर्ज के फस फुस के सूते थां ते चारों वेदों मां इन्हां दियां कर्म कांडां 'च फस के उलझ गया, असीं उहनूं अपना गुरु क्यों मन्नीए? चौंकड़ मुल अनाया बह चौंके पाया, सिक्खा कंन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया। कहते ओ मूआ, इंसान मर गया, चढ़ाई कर गया, ओ मूआ, ओ झड़ पाया, वो धागा झड़ गया, वे तग्गा गया, अवेख बिपर, अड़ा तू धागा पाया सी, बंदा वे तग्गा गया। हुण गल इत्थे बंदे दे चढ़ाई करन तो बाद दी नहीं हो रही, गल हो रही है बंदिया वेख आ धागा जिहड़ा तेरे गल पा के कहा जा रहा अज तो गुरु तेरा ब्राह्मण है, धागा तो तेरे नाल तुरिया ही ना, वो इक्को ही धागा है जिहड़ा तेरे नाल तुरेगा, वो है दया दा, संतोख दा, जत दा, सत दा। माफ़ करना जे ये धागा सड़ जाना तो साडे ककार भी है, पर मेरी बेनती है जिथे असी ककार पाए ने, जिथे असी तानू खंडे की पौल छकाई है, उत्थे मन नूं गुरबाणी का अमृत भी पियाईए। तो सारे माफ़ करना 4 बंदियां नूं तुसीं खंडे की पौल लैण वालियां नूं कर्म कांड करदे वेखो, सारिआं नूं इक्के रस्से नहीं बन सकते, चंगे भी हैगे ने, दोवें हुंदे, दोवें किस्म के लोग, जिवें हर महकमे चंगे माड़े हुंदे ने, इदां ही जदों असीं पैसे की गल करते हैं, जो असी बिजनस की गल करते हैं, जो असी अपने बच्चे को उत्साहित करना होवे, असी हमेशा सफल बंदियां दा नाम लैंदे। तुसीं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना होवे, तुसीं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना होवे, स्कूल जो एडमिशन लाउणी होवे, स्कूल भी जिहड़े टॉप आउंदे बच्चे आ उन्हां दीयां फोटोआं स्कूल दे बाहर लाउंदे ताकि बच्चों उत्साह बने। आ वेखो साडे स्कूल दा बच्चा पंजाब चों टॉप आया है। वो जिहड़े फेल होए हुंदे ने उन्हां दा ते नाम ही नशर नहीं करते, जिन्हां दे ऑपरेशन करदे करदे जिन्हां दी डैथ होई हुंदी है, डॉक्टर तां आम मरीजां नूं दस्सण दी कोशिश भी नहीं करदा, पर जिहड़े सफल होए हुंदे ने उन्हां दीयां फोटोआं ला के इदां विखाउंदा है। इदां ही जिहड़ा आ जिहड़े वीज़ा लवाउंदे ने, जिहड़े वीज़े लगे हुंदे वो फैमिली वालियां को वीडियो बना के पाउंदे ने, वेखो जी साडे इस ट्रैवल एजेंट ने साडी इन्हां दिनां 'च वीज़ा लवाता, पर किन्नियां दे रिफ्यूज होए, उन्हां दी वीडियो बना के क्यों नहीं पाउंदे? पता भी मनोबल डिगना लोकां दा। इहदा अर्थ असीं कामयाबी दे नाल जुड़ना चाहुंदे हां, पर जो खंडे की पौल ते बाणी पढ़न की गल आउंदी आ, हमेशा असीं उन्हां दा नाम लैंदे हां जिहड़े फेल हो चुके हुंदे ने। क्यों? क्योंकि असीं अपनी नलैकी नूं छुपाउणा चाहुंदे हां। जिवें किसी बच्चे ने अपने माँ बाप की गल ना मननी होवे, माँ बाप नाल रहना ना होवे, वो कि उन्हां दोस्तां दा नाम लवेगा जिहड़े अपने माँ बाप तो तंग परेशान होकर वखरे होए ने, उन्हां दा कदी नाम नहीं लएगा जिहड़े अपने माँ बाप की साहीं जींदे ने, जिहड़े अपने पिता दा, अपनी माँ दा, अपने भैण भरावां दा अदब ते सत्कार करदे ने। इंसान अपनी सोच बदल, हमेशा चढ़दे बन्ने नूं लैके जा, नैगेटिव विचारां अपनी जिंदगी चों पासे करते, पॉजिटिव विचार लैके आएगा तेरी जिंदगी वधिया बनेगी। सोच वधिया लैके आ ताकि जिंदगी खूबसूरत बन सके। अज दे सलोक विच गुरुदेव पिता महाराज ने बाकमाल विचारां बख्शिश कीतियां ने। दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, ये तो पात्र ने,
ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜੋਗੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਦਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਸਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਏ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ, ਮਨੋਂ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਜਤ, ਸਤ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 3 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 15 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।